Test on one day. India, England, Australia. What a player! What a player! What a player! Welcome back, everyone, to What a Player Concussions. This is Suman, and I have Akash and Purval today with me. We are privileged to get a hard-hitting opening batsman, the hero of 1984 inaugural Asia Cup, Surinder Khanna, today on our show. Welcome, sir. Very privileged to have you on our show today. Thank you very much. You scored 111 and 128 against Karnataka in the Ranji Trophy final in 78-79. Yes. Well, that's long back, 78. We were in the Ranji Trophy finals. I was a young boy. And both the teams had stalwarts like Irapalli Prasanna, Brajesh Patel, Gunnappa Vishwanath, Kirmani, Sudhakar Rao, Chandrasekhar. So many of them, Roger Binney. Delhi had Mr. Bedi, Bishan Singh Bedi was our captain, Mohinder Amarnath, Surendra Amarnath, Chetan Chauhan, Madan Lal, Rakesh Shukla, and many others, So I was a youngster in the team by virtue of being a wicketkeeper. Our senior wicketkeeper, Inderjeet Singh, had just retired and I had taken over. And we were playing the finals. I actually started playing Ranji Trophy in 76 in the second half. And 78 we were playing the finals. 76 also we played the finals. We lost to Mumbai in Delhi. So this was an opportunity and of a lifetime, and I was lucky to get 100 in the first innings against such experienced and world-class bowlers. And second innings we were 40 for 5. We had a slender lead of 37 runs in the first innings or something like that. And fourth morning we were 43 for 5. My number was actually 9. But when we lost 3 big names in the first over, 1 was run out and 2 were scalped by Chandrasekhar, the finest right-arm leg-spin googly bowler. Madan Lal, Rakesh Shukla, they were next. They were looking for their gloves and pads and things. And I was padded up. My captain, great captain, Bishan Bedi, he looked at me and he said, "Son, you're ready. Why don't you go?" I said, "Right, sir." So I went in. Mohinder Amarnath was on the other end. And I just asked him, I used to call him, his nickname is Jimmy. Everybody called him Jimmy. So I said, "Jimmy Paji, what is happening?" He said, "Kuch nahi ho raha hai, tum apna natural game khelo." And those days, all the top stars used to play in the domestic cricket. For the past 20 years, since the cricket has become a money spinner, they hardly play first-class cricket. They're never available because the commitments for India are far too much, and the IPL. So they are never free to play first-class cricket, only if they get dropped from the Indian team or they have an injury and they have to go back and play 1 or 2 first-class matches. So 43 for 5, a young boy walking in, you can imagine 35,000 people, local Bangalore crowd cheering for their team, and 6 fielders were surrounding me. First ball, on the leg stump, I played a flick shot. I timed it well, hit the middle of my bat. Mid-wicket boundary पे दीवार थी, वहां से लग के वो बॉल अंदर आ गया. इतना खूबसूरत टाइमिंग हुआ. Lovely. पहला बॉल ऐसा लगा कि जैसे मैं पहली इनिंग के बाद 111 से स्टार्ट कर रहा हूँ. So on the board, I looked in between at the total कि 43 है तो 43 से respectable कुछ score हम बना लें. And in the second innings, then Karnataka will chase. On the 5th day, it won't be easy for them if we can put a good score. We had decent bowling as well. So we had a 285-run partnership, I think, if I remember correctly, or you can see the stats. It will be closer to that. And there was a deafening sound for about 4 or 5 minutes. So I turned around to Kirmani, the wicketkeeper, Kirimiya. I call him Kirimiya. He's my elder, senior. So I said, "Miyan ji, ye itna shor kyun hai?"
बोले अरे तुमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो मैंने बोर्ड पे देखा कि अभी तो 300 रन लगे हैं, क्या हिस्ट्री हो गई। तो he said मेरे नजदीक आओ, he hugged me like that and he said in my ear कि तुमने सेंचुरी इन ईच इनिंग्स बना दी है, जो आज तक किसी विकेट कीपर ने नहीं किया। तो then I looked at my individual board, yes, I was batting on 103 or 102। तो मैंने कहा मैं तो अपना स्कोर देख नहीं रहा था, मैं तो टोटल देख रहा था कि कुछ रेस्पेक्टेबल हो जाए। So that was my ग्रेट अचीवमेंट। नाउ आई से मैंने बनाया। काफी सालों तक लोग पूछते थे उसके बारे में, तो मैं कहता था मेरा तुक्का पिट हो गया, तुक्का लग गया। टर्निंग विकेट्स पे आप सोचो, प्रसन्ना चंद्रशेखर, इनके ऊपर ऐसी परफॉर्मेंस होना एक ड्रीम जैसा है। एक आप यू कैन ओनली ड्रीम ऑफ, एंड दिल्ली वन दैट, यू नो। तो इट बिकेम मोर memorable because we won the Ranji Trophy that year. It's always, मेरा ये मानना है, it's always a team sport. Yes, sometimes few performances stand out. लोगों को वो याद रहती हैं। There are many cricketers who score, perform, but कई बार उनकी performances छुप जाती हैं, टीम हार जाती है। But when the team wins, maybe at times a crucial 50, a crucial 40, or 2 wickets at crucial time, when the team needs, when the situation demands, उस समय अगर आप वो कर दो, if you're working in a company and the company is going through a bad phase and you get an order at that time, which can help recharge the battery of your colleagues and their confidence and their morale goes up. So it's like that in cricket. In real life, you can compare your sporting life with your real life as well, what you live and what you do in your life, and you can compare it what discipline you maintain on the sporting field as well. Achievements, yes, when you play for long time, you're bound to create certain landmarks. Or the present generation, for instance, if you ask them who is Surendra Khanna, they would say, well, we don't know, many of them. But I don't mind. I go to many schools, many colleges, many institutions where I speak, guest speaker I'm called, to motivate young children, because they are the future of tomorrow who will carry the country forward. But there are whose family must have been a cricket buff. They know my records, and now with the flick of the finger on your iPad or your phone, you can just put in Google my name and you can get all the records. Definitely, sir. Sir, बहुत motivating story है, बढ़िया story है, and आपको सब कुछ याद है. What is beautiful is सब close in fielders flick किया था. Very vividly you remember all the pieces. यार देखो, कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी होती हैं, जैसे पहली गर्लफ्रेंड, आप भी नहीं भूलोगे। और पहला 100 या पहला बड़ा मैच जो आपने अपने नाम लिख दिया, वो तो 100, 200, 1000 साल दिल्ली की हिस्ट्री जब भी चलेगी। जैसे इट्स स्केलिंग द माउंटेन, माउंट एवरेस्ट। There are thousands of people who must have scaled it now. But we read in history books who did it for the first time. Edmund Hillary and Tenzing Norgay. We all remember. After that, there are so many who did it, but we don't remember them. Correct. It's like Neil Armstrong, who stepped on the moon for the first time. And there are so many after that. बहुत बढ़िया sir. So who does the first time? And if you are part of that history, you know, if I have to close my eyes, I can see that happening. You know how Karnataka team played, how their stalwarts were. Gudappa Vishwanath, one of the finest in the world. You know, Brijesh Patel, champion of domestic cricket. Delhi could never get him out. Delhi North Zone with the best of bowling, and I was the wicket keeper. We could never get him out before 100. It was after 8-9 years. We got him out for 50 odd in Bangalore, and he was not satisfied. It was a bad catch. And he said, I didn't play the ball. They had stalwarts like that. Kirmani, Kirimiya, you know. They're greats. Irapalli Prasanna, what a fine bowler.
one of the finest off spinners, then Chandra. I mean, that kind of bowling on turning pitch. So you can never forget that. That's something which you cherish at this age. When I'm 64, I was 20 something at that time, you know. सर हिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं हम वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमने सुना है कि वेस्ट इंडीज के बॉलर उन दिनों सब बैट्समैन में खौफ पैदा करते थे। तो आपके अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए सर कि आपको कैसा लगता था वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को फेस करते हुए। मैं नॉर्मल आदमी, जैसे आप कह रहे हो खौफ लगता था, मुझे भी खौफ था। तब ना हेलमेट थे, ना थाई पैड था, ना चेस्ट पैड थे, ना एल्बो गार्ड थे। तो वर्ल्ड कप में जब मैं खेला, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स और ये कॉलिन क्रॉफ्ट, तो इनको जोल गाना, they were definitely scary bowlers. I would say in that era, every country had some outstanding bowlers. If you see Pakistan, they had Imran Khan, they had Sarfraz Nawaz. You see Australia, they had Lily Thompson, Max Walker. England, Bob Willis, they had Jeff Arnold, Chris Holt, Ian Botham, Mike Hendrick, Richard Hadley for New Zealand. So many, you know, every country had. And unfortunately, we all missed out on seeing South Africa because of apartheid. They had outstanding cricketers, you know. Graham Pollock, left-hand batsman, they rate him as good as Gary Sobers. Then Mike Proctor. Clive Rice we saw when South Africa came back into international cricket. But by that time he was 40 plus and he was not the same Clive Rice. Though I had played him in England when we were touring England in 79. So West Indian bowlers, they were all different. Colin Croft used to bowl from the edge of the crease, used to angle the ball in and cut the ball. Andy Roberts had such control over the outswing and would bring in the ball. Michael Holding was like Rolls Royce. You know, he was so smooth his run up. He would run from near the screen because he was an athlete before he came into cricket. And that rhythm into the bowling, and he used to transform that into the delivery. So he was bowling close to 150 with such control and such ease. Joel Garner, with his height, he could bowl yorkers at will and make the ball rise from good length. They had such great control. Then the batting which they had, even their batsmen were scary. You know, Clive Lloyd, Gordon Greenidge, Viv Richards, Alvin Kalicharan. They were legends, you know, Desmond Haynes. They were a very strong team and probably they ruled the world cricket for 10-15 years. Then Australia was another team which had Greg Chappell, one of the finest batsmen, along with Viv Richards in the last 50, 60, 70 years. तो memories अगर केवल वेस्ट इंडीज की मैं कहूँ तो उस समय की इंटरनेशनल क्रिकेट की जो बॉलिंग थी और आज की जो पिछले 10, 12, 15 साल से हम देख रहे हैं तो अभी तो बहुत आसान है. These are covered wickets. When we played, the pitches were uncovered. So that added to the degree of difficulty. The bowlers who were classed apart and they would get some help from the pitch, you can imagine, they would become far more difficult. If it's a covered wicket, there is less moisture and it becomes relatively easy for the batsman to play their strokes, what you see in T20s and one-day cricket. And with the rules, they had to bring in, and probably this one-day and T20, since bowlers dominated for a long time, probably some batsmen thought about doing something that the bowlers can't be that menacing. So they brought in this rule of 30-yard circle and they can't bowl too many bouncers and this, that, blah, blah, blah. And now 140 miles, 45, 150 is hit out of the park in T20 like a kid hits the ball with a bat at home, you know. Cricket has changed, you know. It's the money, it's the economics of the game which has taken over, I think. That's the greatest shift. So, सर अब शिफ्ट करते हैं थोड़ा आपका, आप जब इंटरनेशनल में डेब्यू किया
तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों के साथ या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। और 1984 का जो एशिया कप था, सीरीज था, रॉथमैन्स एशिया कप, उसके बारे में कुछ दिलचस्प किस्से या आपकी टीम के कुछ फनी इंसिडेंट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। सबसे इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ कि जब टीम सेलेक्ट हुई, हम बॉम्बे में थे और बॉम्बे से फ्लाइट लेनी थी, तो देयर वाज अ टीम मीटिंग। उसमें कपिल देव आफ्टर विनिंग द 83 वर्ल्ड कप, उसको थोड़ा सा गैप मिला, तो वो नी ऑपरेशन के लिए इंग्लैंड जाना था उसने, तो ही वाज नॉट अवेलेबल। तो गावस्कर साहब वाज रिक्वेस्टेड टू कैप्टन द साइड, और वो हमारे कैप्टन थे। और जाने से पहले टीम मीटिंग हो रही थी, तो आधा पौना घंटा हो गया और डिस्कशन वाज कि जो खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच अवार्ड, मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिले हैं, उन्होंने वो पैसे शेयर नहीं किए। तो इट वाज क्लोज टू एन आवर एंड आई गॉट फेड अप कि ये क्या टीम मीटिंग है, हम एशिया कप खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान श्रीलंका के साथ और यहाँ पे पैसों की डिस्कशन हो रही है। So as a youngster, I was staging my comeback because after the 79 tour of World Cup and series against England, I was out of the team and I had come back in the side. तो मैंने अपना हाथ रेज किया, मैंने कहा शनि भाई कैन आई से समथिंग? ओके, हाँ बोलो सुरेंद्र। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आई थॉट वी वर इन फॉर अ क्रिकेट मीटिंग, दिस डजंट सीम्स टू बी अ क्रिकेट मीटिंग, यहाँ तो कुछ और ही डिस्कस हो रहा है। So I said, let us leave this part behind and you sort this out with the people, those who are not in the team at the moment. You depute somebody who will take up with them and you take the decision on that. But for this tour, I'm in the team. I propose कि whosoever wins the man of the match, man of the series, or whatever awards, will give that money to the manager, and as per your tradition that the winner gets 25% and rest 75% is shared with the team, let's have that and let's have some cricket discussion कि वहाँ विकेट कैसी होगी, कौन वहाँ पे खेला हुआ है, थोड़ा सा हमें बता दे। तो क्रिकेट की बात करते हैं, वहाँ कपिल देव नहीं होगा तो कौन बॉलिंग करेंगे, क्या जिम्मेवारी होगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। वेरी गुड। अब मुझे क्या मालूम था कि वहाँ टूर्नामेंट होगा और मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो जाऊंगा, दोनों मैचों में मैन ऑफ द मैच हो जाऊंगा, बेस्ट विकेट कीपर हो जाऊंगा, बेस्ट बैट्समैन हो जाऊंगा। 5 अवार्ड, पांचों के पांचों मेरे को मिल गए। तो हमारे मैनेजर थे अब्बास अली बेग साहब, तो मैंने लिफाफा जो है उनको पकड़ा दिया था कि सर यहीं पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। तो दैट इज वन पार्ट। देन किरमानी वाज इन द टीम, केरी मियां वाज देयर। तो आई नेवर थॉट, मेरी फॉर्म बहुत अच्छी थी, दैट्स हाउ आई केम बैक इन द टीम। रात को टीम अनाउंस नहीं हुई, नॉर्मली जो है मैच से पहले आपको टीम पता चल जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टॉस हुआ, तब तक भी नहीं पता था। तो गावस्कर साहब टॉस करके आए, उन्होंने टीम ड्रेसिंग रूम में लगा दी थी, जो मैंने देखी नहीं थी बिकॉज ग्राउंड पे जाते ही हम वार्म अप वगैरह में लग गए थे। तो मैं तो सोच रहा था कि मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा और किरमानी विकेट कीपिंग करेंगे। तो वापस आया तो मैंने वहाँ टीम पढ़ी, तो उसमें देखा केरी मियां नहीं खेल रहे और मैं विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पे खेल रहा हूँ। तो जहाँ बैठे थे सीटिंग अरेंजमेंट था, मेरे लेफ्ट पे किरमानी थे, राइट पे गावस्कर साहब थे, मैं बीच में था। अब मैं लेसिस बांध रहा था और हमारी टॉस जीत के फील्डिंग आ गई थी पहले मैच में। तो मैं लेसिस बांध रहा, मैं राइट को देखूं तो गावस्कर साहब, लेफ्ट देखूं तो किरमानी साहब। अब मेरे मन में बहुत, एज अ यंगस्टर आप सोचो कि आप 23-24 साल के हो और जिसको आप अपना आइडल मानते हो वो नहीं खेल रहा है और आपको 11 में जगह मिली है। तो मैं अगर केरी मियां की जगह होता तो मुझे गुस्सा आ रहा होता। तो इससे पहले कि गावस्कर साहब कुछ कहें, केरी मियां ने कहा, खन्ना साहब क्या बात है, क्या है आपके दिल में, माइंड में? तो मैं बोला कि मियां मुझे मालूम नहीं था कि मैं आज विकेट कीपिंग भी करूंगा, मैं तो सोच रहा था आप कीपिंग करेंगे। और तो कहते उठो, उन्होंने मुझे गले लगाया, कहते ऑल द बेस्ट, गो एंड डू वेल। तो ये जो मैग्नानिमिटी और ये जो जज्बा, दिस कैन टेल यू अबाउट द स्पिरिट इन द टीम। और दूसरी तरफ कप्तान गावस्कर थे, तो बोले क्या परेशानी है, तैयार हो जाओ, अंदर चलो, विकेट कीपिंग करो, कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये स्पिरिट थी, कैन यू इमेजिन?
टीम की कि वो सीनियर, उसने कभी सोचा नहीं होगा, और ये गावस्कर ही थे जो उसे बाहर बिठा सकते थे, और अब्बास अली बेग जो मैनेजर थे, उन्होंने देखा कि टीम का बैलेंस, अगर सुरेंद्र विकेट कीपिंग बैटिंग करे तो वो एक खिलाड़ी ऑलराउंडर या बॉलर एक्स्ट्रा खिला सकते हैं टीम के अंदर। उसका रिजल्ट देखो कि इवेंचुअली हमने दोनों मैच बहुत आसानी से जीते। पहला एशिया कप 84 में, रॉथमन्स कप जो आप कह रहे हो वो उससे नेक्स्ट था, जिसमें फिर मुझे दोबारा कभी लेके नहीं गए वो शारजा। इंडियन टीम ने मुझे दोबारा कभी, वो आज तक मुझे पता नहीं चला रीजन क्या कि इतना परफॉर्म करने के बाद मैं अभी 36 साल के बाद वहां गया था जब आईपीएल हुआ। मैन हु स्टार्टेड क्रिकेट इन डेजर्ट, मुखातिर साहब से मुलाकात की, उनके बेटे वली हैं और दूसरे, दोनों से मिले, उन्हें मैंने दरखास्त की, फिर वो अपने अब्बू को ग्राउंड पे लेके आए और 1 घंटा वो माशाअल्लाह मेरे से बात करते रहे, और सबको कि मेरा पहला हीरो ये मेरे टूर्नामेंट का जब मैंने क्रिकेट शुरू की। तो मैंने कहा आप तो विजनरी हैं, आप बहुत गुणी हैं कि आपने जो सोचा, आई हैड नेवर इमेजिन कि वहाँ क्रिकेट इतनी बड़ी हो जाएगी डेजर्ट में, बिकॉज लोकल जब तक उस खेल को ना खेलें, जैसे अमेरिका में आपको, अगर अमेरिकन वो गेम नहीं खेलना शुरू करेंगे तो गेम बड़ा नहीं होगा। अगर इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, वेस्ट इंडियंस के ऊपर ही अगर यूएस क्रिकेट चलेगी तो वो ज्यादा प्रॉस्पर नहीं करेगी। उसकी एक्सेप्टेंस लोकल क्राउड है जो नेटिव्स हैं उनमें भी आना चाहिए, फिर वो गेम बड़ा हो जाएगा। मैं आपको कहूँ कि एंजॉय कैसे करते हैं, तो गावस्कर साहब सबसे ज्यादा प्रैंक्स प्ले करते थे, मिमिक्री, किसी बॉलर का एक्शन जो है किस तरह से, अब्दुल कादिर जैसे वो गेंद को करते थे। नाउ ही इज नो मोर। अब्दुल मेरा बड़ा दोस्त था, कादिर बड़ा यार था, बहुत अच्छा इंसान था, बॉलर बहुत बड़ा था। तो गावस्कर साहब बहुत प्रैंक्स प्ले करते थे। हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनके ऊपर कुछ कर दें, बट टीम हैड ग्रेट एटमॉस्फेयर, वी प्लेड वेरी हार्ड एंड सीरियस ऑन द ग्राउंड। बट शाम को जब आना तो सब एक दूसरे से जो है कुछ भी बात कर सकते थे, मजाक, कोई जोक, क्योंकि यू मस्ट लर्न टू हैंडल द प्रेशर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी प्रेशर होता है, बट अगर आप सारा टाइम प्रेशर में रहोगे तो आपके निर्णय ठीक नहीं होंगे। तो आपको स्ट्रेस रिलीज करना भी आना चाहिए, प्रेशर रिलीज करना भी आना चाहिए। जैसे मैं विकेट कीपिंग करता था तो जब बॉलर चलता था बॉल लेके, तब तो मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करता था। जैसे वो एक्शन कंप्लीट हो गया कि बैट्समैन के पैड पे लगी या मेरे पास आ गई या 2 रन हुए या 1 रन हुआ या मेड इन हो गई बॉल, फिर मैं स्लिप वाले से बात कर लेता था, कुछ ना कुछ, जो भी स्लिप फील्डर होता था, कुछ डिस्कस कर लेते थे मैच के बारे में या कुछ और, कोई बात, कोई गाना गुनगुना लेता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो जिसको ये आता है वो लंबे समय तक खेलता है, क्योंकि इफ यू आर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ऑल्सो यू नो इज नॉट गुड। फोकस रहना चाहिए आपका, जो भी काम आप करते हो। इफ यू आर अ सिंगर, यू आर एन आर्टिस्ट, आईटी है, कुछ है, फोकस रहना चाहिए। बट बीच बीच में आप उठ के थोड़ा बाहर चले जाएं, वॉक करें, क्योंकि आपके बैठे हुए जो है ये लेग्स जो है वो जुड़ जाते हैं। एक ही पोजीशन में अगर बैठे रहोगे तो कई लोग जो है स्मोक करते हैं, वो स्मोक करने जाते हैं, कोई चाय पीने का ब्रेक ले लेता है। तो बीच बीच में लेते रहना चाहिए टू रिलीज दिस स्ट्रेस एंड देन you come back and focus again, you know. Perfect point, sir. हमारा stress reliever है talking about cricket and learning stories just like this, sir. Thank you for sharing. और 2 चीज है, सुनील गावस्कर साहब अभी भी मिमिक्री करते हैं कमेंट्री पे, जैसा वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का इमिटेट करते हैं। परफेक्ट, आपने बढ़िया बात बोला है। एंड देन शारजा में 3 चीज हमेशा हमको याद रहेगी। एक तो आपका 1984 एशिया कप, फिर इंडिया पाकिस्तान गेम्स एसोसिएशन, और वो डेजर्ट स्टॉर्म जो सचिन तेंदुलकर का वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक दोस 3 वाज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। शारजा में क्राउड जो आता है, अभी तो पैंडेमिक के करके अनफॉर्चुनेटली द एंटायर वर्ल्ड उसमें रिस्ट्रिक्शन थी, अब कहीं कहीं पे 50% 40% अलाउ करना शुरू किया है। तो आई थिंक ये जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है, दैट आल्सो एट टाइम्स हेल्प्स the players to raise their level of performance, जब अप्रिशिएट करने वाले बैठे होते हैं। अगर पैंडेमिक में क्राउड ग्राउंड पे नहीं था, लेकिन व्यूअरशिप ऑन द टेलीविजन, आई बॉल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग घर पे थे, वो कोई भी लाइव इवेंट हो तो वो देखते हैं।
लेकिन जो मैदान में रहते हैं वो एक जो एटमॉस्फेयर बनता है, और शारजा में दे कैरी देयर स्मॉल माइक्स विद देम, यू नो, तो उसके ऊपर वो बातें करते हैं जो आपको सुनाई देती है, मैदान में भी सुनाई देती है। तो एट टाइम्स इट हेल्प्स यू, यू नो, और आपको अपना फोकस और कंसंट्रेशन तो लूज नहीं करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वन मिस, किसी जैसे सचिन खेले या ब्रायन लारा खेले या गावस्कर खेले या मियां दाद खेले, राणा तुंगा हो, डिसिल्वा हो, बड़े प्लेयरों का अगर आपने एक कैच छोड़ दिया, दे मेक यू पे। विव रिचर्ड्स, ये इस तरह के प्लेयर्स हैं, इनको एक ही बार आउट करना मुश्किल होता है। अगर एक लाइफ दे दी आपने तो फिर वो पूरी सजा देते हैं आपको। दे मेक यू पे बैडली फॉर दैट, यू नो। तो आपको क्राउड का रहना अच्छा रहता है, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट, यू नो। वो फिर जाके माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। एक घर से अगर एक आदमी आया, वो 10 को बताएगा जाके कि आज उन्होंने क्या देखा मैदान में। तो हमारे टाइम में इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, देयर वाज नो टेलीविजन, और रेडियो पे भी बहुत कम मैचेस आते थे। तो लोग ज्यादातर, इसीलिए मेरा जो पीरियड था 76 to 89 फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और जो मैं इंडिया के लिए खेला 84, तो पाकिस्तान टूर किया, जो भी किया, उसमें से मैचेस उतने ज्यादा टेलीकास्ट नहीं हुए, बट मैदान पे जितने लोग आते थे, 30-35 हजार मिनिमम कैपेसिटी इंडिया में होती थी। इवन छोटे छोटे टूर्नामेंट हम खेलने जाते थे, फिरोजाबाद में, मेरठ में, दिल्ली के आसपास जो है, तो फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, कहीं भी, रोहतक हो, बहुत लोग देखने आते थे मैदान में। छोटे छोटे स्कूल में लोग घरों की छतों से देखते थे। अगर आपको याद हो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, तो उसके आसपास जैसे ओवल ग्राउंड है इंग्लैंड में, उसके ग्राउंड के बाहर जो है लोग जो है उससे अपना बाइनोकुलर से देखते हैं मैच जो है। मैदान में नहीं आ पाते तो उनके घरों से दिखाई देता है, तो वो अपनी चेयर और टेबल लगा लेते हैं, वहीं बियर रख लेते हैं और वहां से देखते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर जो है क्राउड के आने से डेफिनेटली अच्छा लगता है। बट अभी पैंडेमिक टाइम चल रहा है, इसके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ एवरीवन इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड द वर्ल्ड हैज सीन दैट द डिमाइस ऑफ सो मेनी पीपल, एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, यू नो। लेट्स होप things get better. सर, आपने बताया कि उस जमाने में पिचेस अनकवर्ड रहते थे और इस जमाने में पिचेस कवर्ड है। तो आज के जमाने का कौन सा बॉलर ऐसा होगा जो उस जमाने में बहुत खतरनाक हो सकता था? क्या वो रबाडा हो या फिर हमारा बुमराह हो सकता है? ऐसा कोई बॉलर जो आपको लगता है कि उस जमाने में बहुत खतरनाक हो सकता है? I think it will be wrong to compare generations. जो ग्रेट होते हैं ना, जो 10-15 साल अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, वो किसी ईरा में खेलें, वो अच्छा करेंगे। मेरा टेक ये है। टू बी ऑनेस्ट, किसी को डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी अगर मैं कोई वास्तविक बात कर दूंगा, बिकॉज वी आर लाइव, क्योंकि हर कोई अपने ईरा के खिलाड़ियों को ज्यादा तरजीह देता है। और लाजमी बात है कि अनकवर्ड विकेट्स पे आप पढ़े लिखे लोग हो, कि अनकवर्ड विकेट पे आप अंदाजा कर सकते हो कि अगर इमरान खान बॉलिंग कर रहा है या माइकल होल्डिंग बॉलिंग कर रहे हैं, और ये बॉलर्स वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की पिचों पे भी आके, माइकल होल्डिंग ने बहुत विकेट लिए। बिकॉज लेट मी टेल यू द डिफरेंस, जो सुन भी रहे हो, फास्ट बॉलर जो होते हैं उनको विकेट का ज्यादा वो नहीं, हेल्प ना भी हो, बिकॉज दे आर वेरी क्विक थ्रू द एयर, तो दे आर एबल टू बीट द बैट्समैन with the pace, sheer pace. हमारे टाइम में फास्ट बॉलर्स को ये नहीं कहते थे स्विंग कराओ या ये करो, वो बोलते तेज करो, शॉर्ट बॉल मारना तो ऐसा मारो कि बैट्समैन हिल जाए, और फिर यॉर्कर मारो उसे, उसका पैर ही आगे नहीं आएगा तो एलबीडब्ल्यू या बोल्ड कर दो। तो फास्ट बॉलर्स जो है, जो अच्छे क्राफ्टी हैं, तो वो किसी भी एरा में करें। आज भी देखो यॉर्कर, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट मैच हो, यॉर्कर इज स्टिल द बेस्ट डिलीवरी। तो वसीम अकरम, वकार यूनुस याद आते हैं। इमरान खान इन स्विंगिंग मारता था, बाकी जितने भी गेंदबाज हुए हैं वर्ल्ड ओवर, यॉर्कर। और जेफ थॉम्सन के बारे में मैंने बहुत बैट्समैनों से सुना, वो जिस लेंथ से अपना स्लिंगिंग आर्म एक्शन, उनके स्लिंग के बाद एक मलिंगा आया, बट मलिंगा उस तरह से गेंद उतनी तेज नहीं कर सकता था जितना जेफ थॉम्सन करता था।
तो गुडलैंड से एट टाइम्स गेंद उड़ता था, विकेट कीपर को भी जो 40-50 गज पीछे होता था रॉडनी मार्श, और बाउंड्री के बाहर भी कई बार गेंद गई और बाउंड्री से 6 इंच 1 फुट पहले। और ये बातें मुझे जिमी अमरनाथ और ऐसे बड़े लोगों ने, गावस्कर साहब, विशी, उन्होंने बताई हुई है। तो आप सोचो, ऐसे गेंद एक उड़ जाए, उसके बाद भले ही ना उड़े वो पूरे मैच में, लेकिन वो जो खौफ पैदा कर देता है उस तरह की डिलीवरी ड्रेसिंग रूम में, और जो मैच देख भी रहे हो कि यार ये क्या बॉलर है यार, ये तो गेंद अगर लग जाती तो आदमी मर जाए। अभी तो इंग्लिश लेदर की बॉल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, पहले तो वो हार्ड रॉक हार्ड वो वाली बॉल होती थी, कंचे वाली। तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज हेल्प्ड, यू नो, बैट भी अच्छे हो गए, इक्विपमेंट अच्छा हो गया, प्रोटेक्टिव गियर अच्छा हो गया, और इंग्लिश लेदर से बॉल सॉफ्ट हो गई है, तो वो चोट भी उतनी नहीं लगती है जितनी पहले लग सकती थी। अब तो ग्रिल वगैरह हेलमेट आ गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे गेंदबाज हैं, बैट्समैन। अब ब्रायन लारा वो किसी इरा में खेले, तेंदुलकर किसी इरा में, द्रविड़, दे वुड हैव गॉट रन्स। बट हाँ, अगर मैं चूज करूं तो ग्रेग चैपल और विव रिचर्ड्स, इनका कोई मुकाबला नहीं, कोई इनके नजदीक नहीं। आप भले इनके कंपेयर कर लेना वीडियोस देख के किसी के साथ। गैरी सोबर्स, डॉन ब्रैडमैन, इनके मतलब वो है ना, जैसे दिलीप कुमार साहब, तो लाइन कहां से शुरू होगी? दिलीप कुमार साहब इज वे अहेड। यू कांट कंपेयर एनीबॉडी विद डॉन, यू कांट कंपेयर एनीवन विद गैरी सोबर्स। जैक कैलिस विल कम नेक्स्ट, जिसकी चर्चा होगी, बट वो साउथ अफ्रीका से है, हम उसकी बात ही नहीं करते। वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट मैच क्रिकेट हो, T20 हो, कितने विकेट, कितने कैचेस, कितने रन है, 10,000 से ऊपर हर उसमें, एंड टेक्निकली वन ऑफ द फाइनेस्ट, बेटर देन द्रविड़। हु टॉक्स अबाउट हिम? द रियल क्रिकेट पंडित्स विल टॉक अबाउट। हाँ ठीक है, मैं अपने देश की हर कोई तारीफ ज्यादा करता है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट एज वेल, यू नो, व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग क्रिकेटर्स। और साउथ अफ्रीका के जो पहले अपार्थाइड टाइम पे माइक प्रॉक्टर वगैरह अगर आपने देखे होते, ग्रैम पोलॉक, बैरी रिचर्ड्स, इनको अगर आपने देखा होता, कॉलिन ब्लैंड, जॉन्टी रोड जो देखा उसकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है। हर्शल गिब्स का नाम ज्यादा था साउथ अफ्रीका एज अ फील्डर, बाउंड्री से डायरेक्ट थ्रो मार के रन आउट कर देते। जॉन्टी रोड तो सर्कल में ही फील्डिंग करता, तो हम उनकी तारीफ ज्यादा करते हैं, अनफॉर्चुनेटली, यू नो। There are many cricketers, you know, so इरा को कंपेयर नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बट गुंडप्पा विश्वनाथ, इंडिया के बैट्समैन जो मैंने देखे हैं, उससे बेहतर कोई नहीं। पेस हो, स्पिन हो, एज अ ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग्स क्रिकेटर्स आई हैव कम अक्रॉस, कोई मुकाबला नहीं। और भी अच्छे हैं, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट अदर्स। सर, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि MS धोनी के रिटायर होने के बाद विकेट कीपर को लेकर काफी चर्चाएं आजकल चल रही हैं। तो उसमें एक नाम है ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, KL राहुल, संजू सैमसन। सो आपका क्या थॉट है कि नेक्स्ट, यानी ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो, उसमें एक ही विकेट कीपर, तीनों फॉर्मेट में एक ही विकेट कीपर रखना चाहिए, या अलग अलग विकेट कीपर अलग अलग फॉर्मेट के लिए रखना चाहिए? और अगर आपको चूज करना होता तो आप इंडिया के लिए अभी किसको आप पिक करते हैं अभी बेस्ट विकेट कीपिंग कंडीशंस को देखते हुए? देखो, ये जो ऋषभ पंत है, एक्सेप्शनल टैलेंट है। गिलक्रिस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, दिस बॉय हैज द एबिलिटी टू विन अ मैच, टू चेंज द सिचुएशन, सिनेरियो सिंगल हैंडेडली। और इस तरह के टैलेंट बहुत कम आते हैं, इसीलिए उसको कप्तान और सेलेक्टर्स जो है मौके दिए जा रहे हैं। और इस सीरीज में पिचें इतनी अच्छी नहीं हैं, स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, और उस पे उसने विकेट कीपिंग जो है, अगर कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह वो कैचेस छोड़ रहा था, स्टंपिंग छोड़ रहा था, तो यहाँ पे उसने बेहतर किया है। तो उसको अगर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, सैमसन जो है वो बहुत अच्छा, टेक्निकली वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, विकेट कीपर। बट कई बार क्या होता है कि धोनी के रहने से काफी लोगों का, जैसे किरमानी हमारे टाइम में थे, तो बहुत विकेट कीपर्स हम लोगों को उतनी खेलने को नहीं मिली क्रिकेट, बट ही वाज ग्रेट, यू नो, धोनी डिड सो वेल इन ऑल द फॉर्मेट। बट अभी मेरा जो टेक है वो ये है कि T20 में अगर आप कोई IPL से प्लेयर पिक करते हो,
तो उसको आप T20 में इंडिया के लिए खिलाओ। वनडे से अगर पिक करते हो तो उसको वनडे में खिलाओ, और टेस्ट क्रिकेट से अगर पिक करते हो तो टेस्ट मैच में खिलाओ। और उसके लिए भले ही आप 3 कप्तान रखो, 3 टीमें बना दो। अगर मेरी कोई सुनवाई होती हो तो आई वुड डू दैट। उससे क्या होगा, व्हेन यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर्स, तो बहुत कम होंगे जो तीनों फॉर्मेट में होंगे, जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, और 1-2 और कोई हो सकते हैं। तो इनकी लाइफ और इनकी फिटनेस, इनकी परफॉर्मेंसेस वो बढ़ जाएंगी। नहीं तो इनके इंजरी, आप देखो आजकल हमारे फास्ट बॉलर्स कितने इंजर्ड हो रहे हैं। बुमराह को देख लो, ईशांत शर्मा को देख लो। अभी ईशांत तो सिर्फ टेस्ट मैच में खेल रहा है, दूसरे क्रिकेट में नहीं खेल रहा है इंडिया के लिए। यादव है, थोड़ा सा इन्हें टेस्ट मैच में बॉलिंग करनी पड़ती है तो ये इंजर्ड हो जाते हैं, बिकॉज आजकल ये T20 और वनडे ज्यादा खेलते हैं। तो बेहतर है कि T20 और वनडे के आप स्पेशलिस्ट बना दो और टेस्ट मैच के अलग बना दो, तो उससे क्वालिटी भी बढ़ जाएगी आपकी इंजरीज भी कम होंगी और परफॉर्मेंसेस भी आप रिलेटिवली फ्रेश होगे। और डिफरेंट कैप्टन ब्रिंग इन न्यू आइडियाज, जैसे रेहाने ने कप्तानी की, हम 36 पे आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद जैसे उसने रीग्रुप कराया, कितने सीनियर्स इंजर्ड थे, कितने प्लेयर नहीं थे टीम में, उसके बावजूद नेट बॉलरों के साथ वो सीरीज जितवा के ले आया। तो ये हमारे पास अगर है काबिलियत उसकी, तो इस्तेमाल करना चाहिए हमें। रोहित शर्मा को वनडे T20 में देखो, मुंबई इंडियंस को उसने 4-5 बारी चैंपियन कराया, तो वो बैटिंग भी अच्छी करता है और बहुत कूल कस्टमर है। एशिया कप भी भारत जीता जब भी इंडिया की उसने की है। रेहाने ने जितने मैच इंडिया के किए हैं वो कोई टीम मैच नहीं हारी उसकी कप्तानी में। तो आई एम नॉट सेइंग कि विराट कोहली को हटा दो, बट दैट्स माय टेक कि वी हैव नेवर वन अ मल्टी टीम टूर्नामेंट अंडर विराट कोहली। ये भी सत्य है। T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, सो स्पेशलिस्ट टीम एंड स्पेशलिस्ट रोल्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस होना चाहिए सर आज के डे एंड एज में। आप तो विकेट कीपिंग स्पेशलिस्ट हो, सो अगर बडिंग क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स वांट टू टेक अप विकेट कीपिंग एज अ करियर, आपका क्या एडवाइस है? आपका क्या 1-2-3 टिप्स देंगे उन लोग को स्टार्टिंग करने के लिए उनका करियर? देखो, कोई भी आप विकेट कीपिंग लो या बैटिंग या बॉलिंग, जो भी करना है, तो उसके जो बेसिक्स हैं वो आप उसके ऊपर वर्क इनिशियली जो है वो बहुत करें। विकेट कीपिंग में टू कीप इट सिंपल, कि आप जो है यू राइज विद द बॉल, कीप योर आइज ऑन द बॉल, व्हेन इट रिलीजेस द बॉलर रिलीजेस, गेंदबाज के हाथ से जब गेंद चले आपकी नजर होनी चाहिए। जब गेंद पिच करे तो आप पिच होने के बाद उठे गेंद की बाउंस के साथ, उसको अपने ग्लव्स तक आते हुए नजर वहां पे रहनी चाहिए आपके ग्लव्स में जब तक गेंद आना जाए। यही बैटिंग में आप फॉलो करते हो। तो ये बेसिक्स जो है, और जितने आप दिन में 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500 कैचेस पकड़ो, जितना आप करते जाओगे, वो कहते हैं ना, चाय में जितनी शक्कर डालोगे तो उतना मीठी हो जाएगी। तो जितनी मेहनत आप करोगे करेक्ट में, पहले होता था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आई हैव चेंज्ड इट फॉर द लास्ट 20-25 ईयर। करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मेहनत तो सारे करते हैं, लेकिन ऊंचाइयों पे तो कम लोग पहुंचते हैं, जो मेन डेस्टिनेशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो, जैसे योगा करते हो, तो उसमें जो आप सांस को रिलीज करते हो, इनहेल और एक्सहेल, वो भी आपको आना चाहिए एक्सरसाइज करते हुए, तब आपको पूरा फायदा हो। ऐसे ही विकेट कीपिंग है या बैटिंग है या बॉलिंग है, वॉच द बॉल क्लोजली। लाइक इन बैटिंग यू पिक द बॉल अर्ली, प्ले इट लेट। बॉलिंग है तो लाइन एंड लेंथ बेसिक्स, कि आप टप्पा जो है वो अच्छा कर लो। फिर बैट्समैन कोई हो, आंख बंद करके आप गेंद टप्पे पे रखोगे, जब बैट्समैन को रन्स नहीं मिलेंगे, बॉल मारने को नहीं मिलेगी लूज बॉल, तो वो गलती करेगा। और विकेट कीपिंग में जो है, आप जितने कैचेस पकड़ोगे, जितनी विकेट कीपिंग करोगे दिन में, कोई टेस्ट मैच में आप सोचो अभी 90 ओवर्स होते हैं दिन में, तो कितनी आपको अपनी कंसंट्रेशन और फिटनेस कितनी चाहिए। और मेरे फिटनेस को मेजर करने का जो पैमाना है, जो पहली बॉल पे आपकी एकाग्रता है, जो फिटनेस, जो आपकी एजिलिटी, जो कंसंट्रेशन, जो फुर्ती पहली बॉल पे है, वही आखिरी गेंद पे भी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड फिटनेस। ये नहीं कि आपने 1 घंटा तो अच्छा किया, फिर 1 घंटा ढीले पड़ गए,
पता चला उसमें 1-2 कैच छूट गए या स्टंप छूट गए या बाई के चौके चले गए। फिर आप जागे लंच के बाद, कोच कहेगा, कप्तान कोई बॉलर कहेगा क्या कैच छोड़ दिया, फिर आप जागोगे। तो ऐसे नहीं चलता। तो आपको जो है अपने बेसिक्स जो है वो इतने स्ट्रांग, और फिजिकली फिटनेस एंड मेंटल टफनेस वो बहुत जरूरी है। वो किसी भी फील्ड में, आप गायकी करो, डांस करो, आईटी करो, कुछ करो, मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। और फिजिकल फिटनेस जितनी होगी तो आप थकोगे नहीं। एंड डू जो आपका पैशन है वो कर। घर वालों ने कह दिया आईटी में आगे कोई फायदा नहीं, वकील बनने लग गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मेडिसिन में आ गए, बिकॉज इंटेलिजेंट आप थे, आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते थे। बट आपका दिल क्या कहता है, जो आपका दिल चाहता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको जो है 78 की बात याद करा रहा हूँ, मैं तो 72 की भी करा दूंगा जब मैं पहली बार टेली स्कूल्स में खेला। तो क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अगर कोई खेल देखा हुआ है या मैं वो मैच खेला हुआ हूँ, उसमें मैं बता दूंगा किस प्लेयर ने परफॉर्म किया था। हो सकता है नाम उसका मुझे अभी थोड़ा याद ना आए, बिकॉज आई लॉस्ट माय यंग सन 2 years बैक एंड माय वाइफ 6 years बैक। तो ये जिंदगी में जो चलती रहती है जद्दोजहद, तो लेकिन थोड़ा सा मेरी मेमोरी में वो कहते हैं वो क्या वायरस आ जाता है थोड़ा कभी कभी। अदरवाइज जिसका आपको पैशन होता है ना, तो आपको फील ही नहीं होता कि आपको थकावट होगी। मैं आज भी अगर भगवान मेरे को मेरी टांगें जवान कर दे, आईसाइट ठीक कर दे पहले जैसी, अभी बताओ किस बॉलर की तोड़ाई करनी है ये कवर्ड पिचों पे। आजकल बैट जो है इतने अच्छे हैं, बाउंड्री 50 गज की हो गई, एज लगता है तो 6 हो जाता है। और अच्छे बॉलर ने 4 ओवर करने हैं बस, वो भी किश्तों में करेगा, 2 पहले करेगा, 2 बाद में करेगा। आसान उसके लिए जिसको आता है, जिसने रियाज तगड़ा किया। वो कहते हैं बंदर का भी गुलाटी खाना नहीं भूलता। हमारे जमाने के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की हुई है, और ऐसे ऐसे उस्ताद होते थे, अगर नेट में एक खराब शॉट खेला तो बैटिंग नहीं मिलती थी फिर हफ्ते 10 दिन के लिए, उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती थी। आजकल तो खिलाड़ी नाम इतने बड़े हो गए हैं, वो कोच ही हटवा देंगे ऐसा। वो तो सही बात है सर। सर एक आखिरी क्वेश्चन मेरे साइड से है। सो आपने जैसे कि हम जानते हैं आपने ऑल इंडिया रेडियो के साथ एक छोटा सा काम या स्टिंट किया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? ऑल इंडिया रेडियो के साथ मैं कोई 30-35 साल से जुड़ा हूँ, दूरदर्शन के साथ। जब वहाँ पे पैसे नहीं होते थे, 100-200 रुपए मिलते थे, मैं तब भी काम करता था, क्योंकि मेरा तो पैशन। और मुझे मालूम है कि ये ऐसे माध्यम है जहाँ पे प्रोफेशनली ये उतने पैसे नहीं दे सकते, बट अगर वो मेरे पास कोई भी आदमी आता है या फोन आता है, मैं उनका काम जैसे पहले करता था आज भी करता। लेकिन सिंस उन्होंने अपनी फीस थोड़ी बढ़ा दी है, अभी बड़े बड़े क्रिकेटर्स जुगाड़ करने लगे, उनको फोन करने लगे और वो पहुंच जाते हैं। तो मैं आज भी वैसा ही हूँ, अगर मुझे फोन आएगा तो मैं ना नहीं करता, तो उनके साथ जो है काम करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, स्पष्ट रखता हूँ, और जो मुझे नजर आता है वो बोलता हूँ। डरता मैं किसी के बाप से नहीं। सर आपने इतने सालों से क्रिकेट फॉलो किया है, आपको क्या लगता है कि आज के जमाने में ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो बेहतरीन क्रिकेट खेलता है? यार T20 अगर देखो वो रिटायर हो गया, बट IPL वगैरह खेलता है। क्रिस गेल है, डिविलियर्स है, रोहित शर्मा है, दे मेक बैटिंग लुक इजी। रसल है, जिस तरह के छक्के वो मारता है आके, पावर हिटिंग जो वो ये करते हैं, इट्स अनबिलीवेबल। क्रिस गेल देखो, ही इज 42। आज ही मैं पढ़ रहा था वेस्ट इंडीज हैज गॉट हिम बैक इन द T20 स्क्वाड। तो ये चैंपियन प्लेयर्स है, एट विल सिक्सेस मारते हैं, क्लियर्स द बाउंड्री। कोई बॉलर टू नेम जस्ट वन, आजकल बहुत हैं वनडे स्पेशलिस्ट, T20 स्पेशलिस्ट, मैक्सवेल ऑन हिज डे, वार्नर ऑन हिज डे, दे आर devastating. Stokes is another exciting all-rounder in world cricket. But quite a few Bairstow, क्या जबरदस्त उसने हमारी तोड़ाई की इंग्लैंड में। हमारी बॉलिंग तो बहुत तोपचंद थी, क्या ठोका उसने हमें। तो दिन की भी बात होती है, बट कंसिस्टेंटली जिसने वर्ल्ड ओवर
डिविलियर्स जो है 360 डिग्रीज जो है, और क्रिस गेल, मेरा मानना है ये दो ऐसे प्लेयर हैं, ये किसी भी टीम को, किसी भी बॉलिंग को ध्वस्त कर देते हैं। एंड ओवर such a long period of time, if you see, Rohit Sharma on his day, he got 500s in World Cup, in England as an opener. कोहली का एक भी नहीं बना। उसने गेंद कितनी स्टेज इसके लिए कितनी बारी सेट करके दी। कोहली अपना अगर 50 भी करता है 70-80 गेंद लगा देता है। और रोहित शर्मा के आप देखा करो स्ट्राइक रेट, ये नहीं कि कोहली की अहमियत नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट, बट सम प्लेयर्स जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं हु मेक द ड्रेसिंग रूम हैप्पी। रोहित शर्मा खेल रहा है ड्रेसिंग रूम पे, आप चेहरों पे जब कैमरा लगता है आप देखा करो, मजेदार शॉट्स खेलता है सर रोहित शर्मा। क्रिस गेल जब खेल रहा था, अभी आईपीएल दुबई में हो रहा था, तो आई वाज ऑन द आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, अभी मुझे 1 साल के बाद हटा दिया उन्होंने, तो हम वहीं होते थे, हमारे सामने ही ओनर्स और ये सब बैठे रहते थे। तो पहले 6-7 मैच में कुंबले ने खिलाया नहीं पंजाब टीम में क्रिस गेल को, तो मैं जनरली जैसे बात करते हैं बैठा हुआ, तो ओनर मेरे आगे ही शारजा में बैठे हुए थे। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जब प्लेयर जो है गलती करता है उसे आप टीम से ड्रॉप कर देते हो, अंपायर ज्यादा गलती करता है उसको हटा देते हो पैनल से, ये कोच क्या कर रहे हैं साला? प्रोबेबली उनमें से, क्योंकि अब मैं थोड़ा तगड़ा हो गया हूँ, मेरा वेट बढ़ गया, और उनमें से कुछ ना जानते हो मैं कौन हूँ। मैंने कहा जिस दिन गेल खेलेगा ये टीम जीतेगी। द डे गेल प्लेड 6 games at a trot, पंजाब जीती। They were almost ready to win the tournament. हम तो फ्री ऑफ चार्ज एडवाइस कर रहे हैं। सर बहुत मजा आया आपसे बात करके सर, ऐसे हम लोग 2-2 घंटे बैठ जाते, पर हमको एपिसोड तो खत्म करना ही है। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र सर जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एंजॉयड। Most ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। टेक केयर, शबा खैर।